Hello friends, I am CA Dr. Anand Banka and today we will be discussing the changing face of financial statements. Basically today we will talk about how balance sheet has evolved over a period of time, how P&L has evolved over a period of time. Now you see other comprehensive income. What is other comprehensive income? What is total comprehensive income? There are statements now like statement of changes in equity. How do you read that statement? What do you make of those statements? What are new things that is happening in Ind AS, Indian accounting standards, and how even the accounting standards would over a period of time evolve in lines with Ind AS. So basically we'll start with balance sheet and then move on to P&L, OCI, then statement of changes in equity, and finally we'll talk about some of the concepts which are critical under Ind AS. Let's start with how the balance sheet looks. Now if you see the slide, okay, it starts with non-current assets, and like normally we see non-current assets, current assets breakup हमें दिखता है. Non-current assets वो होते हैं जो generally 12 महीने के ऊपर 12 months and above you are going to realize those assets. करंट असेट्स वो होते हैं जो जनरली 12 मंथ्स के अंदर यू विल रियलाइज लाइक इन्वेंटोरीज ट्रेड रिसीवेबल्स. Between these also you will find financial items like financial instruments. Now non-current assets, current assets subdivided into financial instruments and non-financial instruments. Financial instruments जनरली बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो वो आइटम्स होते हैं जो आपको कैश देंगे, दैट मीन्स मॉनिटरी वैल्यू देंगे, कैश देंगे, या दूसरा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देंगे लाइक इक्विटी ऑफ सम अदर कंपनी. सो या तो वो आपको दूसरी कंपनी का इक्विटी देंगे या वो कैश देंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स, cash, bank, these are, or your investments, these are your financial instruments. So basically balance sheet breakup हो रहा है non current current में and then financial non financial में. This is on your asset side. Now हमें आदत थी पहले पुराने बैलेंस शीट को देखने की जिसमें टॉप पे हम देखते थे इक्विटी, उसके नीचे आती थी लाइबिलिटी, फिर उसके नीचे आते थे असेट्स. अब हो गया रिवर्स. अब पहले आपको दिखता है एसेट्स, फिर आपको दिखता है इक्विटी और फिर आपको दिखता है लाइबिलिटी. सो द ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स और द ऑर्डर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इज चेंज नाउ. असेट्स फिर लाइबिलिटीज. ओके, नाउ असेट्स में आई एक्सप्लेन्ड नॉन करंट, करंट, उसके अंदर फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल. अब आप लाइबिलिटी साइड देखिए. सो पहले आपको दिख रहा है इक्विटी, फिर आपको दिख रहा है लाइबिलिटी. ओके, अब लाइबिलिटी के अंदर भी सिमिलरली नॉन करंट, करंट, अगेन 12 महीने का क्राइटेरिया है, एनीथिंग मोर देन 12 मंथ्स. सो जो अगले 12 महीने में नहीं आपको पे करना है ना, यहाँ पे हम जाते हैं लीगल ऑब्लिगेशन से. अगर इफ़ यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे विद इन 12 मंथ्स, लीगल ऑब्लिगेशन, आपको लग रहा होगा कि आप नहीं पे करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ रहा है. अगर लीगली ऑब्लिगेशन है आपको 12 महीने के अंदर पे करने का, सो देन इट इज़ करंट लाइबिलिटी. इफ़ यू कैन पुश इट टू मोर देन 12 मंथ्स लीगली, ओके, देन इट इज़ नॉन करंट. अदरवाइज ऑल योर लाइबिलिटीज विल बी करंट. सो नॉन करंट में क्या आते हैं? टर्म लोन्स जो आपके 3 to 5 years वाले टर्म लोन्स आ जाएंगे, NCDs जो आपको मोर देन 12 मंथ्स पे करने हैं. So those items will come in non-current. Every other item will come in current liability. Again, liabilities are bifurcated into financial, non-financial. Financial liabilities are those which will be paid off in cash, like your borrowings, trade payables, and anything which will not be paid in form of cash or equity, issuance of equity, or by एनी अदर फिनेंशियल असेट, कोई और फिनेंशियल असेट यूज कर दिया लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए, देन दीज आर फिनेंशियल लाइबिलिटीज.
अदरवाइज ऑल अदर लाइबिलिटीज आर नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के एग्जांपल्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो प्रोविजंस, any amounts received from customer in advance, these are your non financial liabilities because ये settle cash में नहीं होने वाले हैं. So this is how your balance sheet looks. So major difference again order difference हुआ है and classification financial non financial difference हुआ है between जो हम पहले करते थे और जो आज करते हैं. एक और difference liabilities में आपको दिखेगा, basically anything which is payable to MSME, micro small and medium enterprises. Government wants that MSME को payment time पे हो, इसीलिए any payment which you have not made to MSME sector that will be shown on the face of your balance sheet. आपके balance sheet के face पे ही दिख जाएगा कि इतना payable है amounts. एंड देन नोट्स में आपको ये भी देना पड़ता है कि कितने टाइम से आपने पे नहीं किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है और कितना पे करना है. सो बेसिकली एमएसएमई जो प्रायोरिटी सेक्टर बन गया है उनको कॉन्सेंट्रेट करते हुए उनको कितना पेएबल है, कितना इंटरेस्ट पेएबल है, कितने दिनों से पेएबल है, ऑल आइटम्स यू हैव टू डिस्क्लोज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड दैट इज़ वाई बैलेंस शीट के फेस पे ही आपको दिख जाएगा व्हाट इज़ पेएबल टू एमएसएमई. अगर हम पीएनएल पे चलते हैं, इनकम स्टेटमेंट पे, इनकम स्टेटमेंट लार्जली सिमिलर है. जो आप पहले करते थे, जो आप आज करते हैं, लार्जली सिमिलर दिखेगा. रेवेन्यू, अदर इनकम, टोटल इनकम, देन योर एक्सपेंसेस, योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एक आइटम जो आपको नहीं दिखेगी वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. सो हम पहले एक क्लासिफिकेशन रखते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. अभी ये बोला जाता है कि ऑल आइटम्स आर ऑर्डिनरी आइटम्स. ऐसा कोई आइटम नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. सो यू विल नॉट सी नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इन योर इनकम स्टेटमेंट. कंपनीज के इनकम स्टेटमेंट में अभी आपको कोई आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखेगा. हाँ, कई कंपनीज एक्सेप्शनल आइटम्स रखती है. एक्सेप्शनल आइटम्स आर ऑर्डिनरी इन नेचर, बट या तो उनके अमाउंट के वजह से या वो नेचर के वजह से अमाउंट इतना ज़्यादा है कि एक इन्वेस्टर को समझने के लिए उसको आप फेस पे दिखा रहे कि ये आइटम के वजह से मेरा पीएनएल डिस्टॉर्टेड है, तो मैंने आपको अलग करके दिखा दिया. दैट इज़ एक्सेप्शनल आइटम. या फिर नेचर ऐसा है कि ये इसी साल आया है, ये ना पहले था ना आगे आएगा, इसीलिए मैंने आपको अलग करके दिखा दिया. So that is also an exceptional item. So because of nature or because of amount, companies classify certain items as exceptional. पर extraordinary classification नहीं है. Everything is ordinary. It can be exceptional for a year, but not extraordinary. P&L बाकी same है. But what has happened now is P&L के नीचे एक नया item आ गया है, which is called as other comprehensive income. एंड ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये है क्या और क्यों है. नाउ ये क्या है? बेसिकली रिजर्व्स में जो मूवमेंट होते हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग्स या अदर रिजर्व्स में जो मूवमेंट होते हैं, वो कई रीजंस के वजह से होते हैं. वन ऑफ द रीजंस कैन बी प्रॉफिट जो कमाए इस साल में, उसके वजह से मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएगा. अदर रीज़न कैन बी मैंने जो डिविडेंड्स दिया, बोनस इशू किया, या कुछ शेयर होल्डर के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, लाइक डिविडेंड्स, बोनस, राइट इशू, उस वजह से मेरे रिजर्व्स चेंज होते हैं. इसके अलावा देयर आर अदर रीजंस बिकॉज ऑफ विच माई रिजर्व्स चेंज. फॉर एग्जाम्पल रीवैल्यूएशन रिजर्व, इस साल में मैंने रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो जाएगा. या फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, मैं मेरी फॉरेन ऑपरेशंस को ट्रांसलेट करता हूँ फ्रॉम वन करेंसी टू INR, वॉट एवर करेंसी जो भी उनका होम करेंसी से INR में, जिस वजह से मेरा करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व क्रिएट होता है. देन हेजिंग रिजर्व्स होते हैं. अगर मैंने कैश फ्लो हेज किया है तो उस वजह से मैं एक रिजर्व क्रिएट करता हूँ. या फिर there are other reserves for various reasons. For example, actuarial valuation के वजह से भी reserves create होते हैं.
सो ये सारे रिजर्व्स में जो मूवमेंट होगा विच इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन विथ शेयर होल्डर, सो डिविडेंड्स के वजह से नहीं, राइट इशू के वजह से नहीं, प्रॉफिट के वजह से नहीं, इसके अलावा कोई भी रीज़न से अगर रिजर्व्स चेंज होते हैं सो वो OCI में आपको दिखते हैं. ओके, बट दिस इज़ ओनली टू कैप्चर द रिजर्व मूवमेंट. उसमें आपको टैक्सेस भी इंक्लूड करने हैं अगर इनके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है, डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट है, सो वो टैक्सेस भी आपको उसी लाइन आइटम के साथ दिखेंगे. एंड देन उसके नीचे आपको दिखेगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. नाउ OCI एज अ इन्वेस्टर, do I have to see, do I have to read, and how do I make of it, or what do I make of it? जब ये क्वेश्चन आता है सो प्रैक्टिकली अगर इसका आंसर दिया जाए सो एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स जनरली इसको इग्नोर करके चलते हैं. आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कैलकुलेट होता है. जो कंपैरिजन होता है बिटवीन इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ मल्टीपल कंपनीज वो भी या तो एबिटा पे होता है, या तो रेवेन्यू पे होता है, या प्रॉफिट्स पे होता है. सो जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में OCI को इग्नोर करके चलते हैं, प्रॉफिट तक रुक जाते हैं. एनालिसिस जो भी होता है वो प्रॉफिट के बेसिस पे होता है, OCI और TCI के बेसिस पे नहीं होता है. बट थियोरेटिकली ये क्रिएट किया गया है ताकि रिजर्व मूवमेंट को आप कैप्चर कर सके, रिजर्व मूवमेंट को आप देख सके कि क्यों रिजर्व में मूवमेंट्स हो रहे हैं और उनके ऊपर टैक्सेस का इम्पैक्ट क्या है. सो इट इज़ प्योरली फॉर थियोरेटिकल रीजंस. प्रैक्टिकल रीजंस में आप अगर या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप जाएंगे तो OCI को नहीं इतना देखा जाता है. नेक्स्ट अगर आप चले तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एक्सप्लेन करना है वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SOCI भी कहते हैं, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये क्या है? नाउ ये एक नया स्टेटमेंट है जिसमें आप मूवमेंट इन रिजर्व्स देख सकते हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या मूवमेंट हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या मूवमेंट हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिजर्व्स, हर रिजर्व में क्या मूवमेंट हो रहा है, किस रीज़न से मूवमेंट हो रहा है, वो एक ही स्टेटमेंट में कैप्चर किया गया है. ये मूवमेंट पहले भी हम देते थे, पहले हम ये मूवमेंट नोट्स में देते थे. अब वो नोट्स से निकाल के इसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक टैबुलर मैनर में, ताकि एक ही टेबल में आप पूरा मूवमेंट ऊपर से नीचे तक कैप्चर कर सके विथ रीजंस, इसीलिए इसे टैबुलर फॉर्मेट में डाल के एक स्टेटमेंट का नाम दे दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. बट ये मूवमेंट आप पहले भी देते थे, पहले हम नोट्स में देते थे, अब हम टैबुलर फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में, एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अच्छा सा नाम देते हुए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोलते हुए इसे देते हैं. इसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो पहले